بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین و سامعین، آپ سن رہے ہیں دیوتا۔ تو آئیے بڑھتے ہیں کہانی کی جانب۔ مسٹر پاشا نے صرف میری آواز سن کر نام کیسے معلوم کر لیا؟ تم خود سوچو، تم نے کل سے اب تک کسی ایسے دوست یا رشتہ دار سے ملاقات کی ہوگی جس نے تمہارا نام لے کر تمہیں مخاطب کیا ہوگا اور پاشا نے سن لیا ہوگا۔ علی کو یاد آ گیا، پچھلی رات فرانس کے سفیر نے اسے نام لے کر مخاطب کیا تھا۔ مریم نے کہا، بابا فرید واسطی صاحب کے ادارے سے پاشا کو بہت بڑی آفر دی گئی تھی۔ اگر وہ اسے قبول کر لیتا تو آج جانے انجانے دشمنوں سے محفوظ رہتا۔ اس کے غیر معمولی طبی تجربات سے اس ادارے کے ذریعے اندھوں، بہروں، ذہنی مریضوں کو معجزانہ طور پر بینائی، سماعت اور دماغی توانائی حاصل ہوتی۔ آپ درست کہتی ہیں ممی، اب بھی کچھ نہیں بگڑا ہے۔ ہم دونوں مسٹر پاشا کو ادارے میں لے جانے کی کوشش کریں گے، اس سے پہلے کہ وہ کسی خطرناک تنظیم کے ہتھے چڑھ جائے۔ ہمیں اسے ڈھونڈ نکالنا چاہیے۔ علی اس سے باتیں کر رہا تھا اور سوچ رہا تھا، اگرچہ مریم کے ذریعے یوسف تک پہنچنے میں کچھ آسانی ہوگی، تاہم یہ نقصان ہو رہا ہے کہ وہ پہچان لیا گیا ہے۔ یوسف پاشا اسے جانتا ہے۔ اگر کوئی ٹیلی پیتھی جاننے والا دشمن مریم کے دماغ میں آتا جاتا ہوگا تو اسے بھی علی کی اصلیت معلوم ہو جائے گی۔ علی کے ایسا سوچنے سے پہلے ہی شیتارہ اور سرنا کو سب کچھ معلوم ہو چکا تھا، اور وہ اس پہلو پر غور کر رہے تھے کہ یوسف سے پہلے علی کو زیر دام لایا جائے۔ اگر وہ گرفت میں آ جائے اور اسے یرغمال بنا کر رکھا جائے گا تو فرحاد کی فیملی کا کوئی فرد ان کے اور یوسف کے درمیان نہیں آئے گا۔ پھر وہ کسی کی مداخلت اور رکاوٹ کے بغیر تمام فارمولاز حاصل کر لیں گے۔ جب تک علی طیارے میں سفر کرتا رہا، وہ بہن بھائی اسے ٹریپ کرنے کی کوئی اچھی سی تدبیر سوچتے رہے۔ یوں تو کئی تدابیر ذہن میں آ رہی تھیں، لیکن وہ مطمئن نہیں ہو رہے تھے۔ سرنا نے کہا، فرحاد اور اس کے بیٹے قسمت کے دھنی ہیں، آہنی شکنجوں سے بھی نکل جاتے ہیں۔ ان کے ساتھ جسمانی طور پر مقابلہ نہ ہو، ان سے ذہانت میں مقابلہ کیا جائے تو کامیابی کی توقع کی جا سکتی ہے۔ وہ بولی، ان کا طیارہ 2 گھنٹے بعد نیو یارک پہنچ جائے گا۔ میری عقل کہتی ہے اگر اسے ایئرپورٹ ہی سے ٹریپ نہ کیا گیا تو وہ پھر مشکل ہی سے ہاتھ آئے گا۔ میری بہنا، وہ علی تیمور ہے، اسے ایئرپورٹ سے جبراً اغوا کرنے کا تصور بھی نہ کرو۔ ہم تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ کیسی قیامت برپا کر دے گا۔ اسے ہاتھ لگائے بغیر اغوا کیا جا سکتا ہے۔ یہ ہے ذہانت کی بات۔ اب بتاؤ کیسے؟ ایسے کہ ثانی اور علی کے درمیان دماغی رابطہ رہتا ہوگا۔ ہاں، وہ عاشق معشوق ہیں، ضرور رابطہ رکھتے ہوں گے۔ میں ثانی کا لہجہ اختیار کر کے علی کے دماغ میں جا سکتی ہوں۔ ان کے درمیان کوڈ ورڈز ہوں گے اور وہ تم نہیں جانتی ہو۔ کوڈ ورڈز کی فکر نہ کرو، میں بات بنا لوں گی۔ اچھا، آگے بولو۔ آگے کچھ بولنے سے بہتر ہے پہلے میں اس کے دماغ میں جا کر یہ تدبیر آزماؤں۔ کامیابی ہوگی تو تمہیں منصوبے کا اگلا حصہ بتاؤں گی۔ ایسا نہ ہو کہ تم سے پہلے ثانی اس کے دماغ میں پہنچی ہو اور انہوں نے اپنا کوئی اگلا پروگرام بنایا ہو۔ اگر ایسا ہوگا تو زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا کہ ہمیں ناکامی ہوگی۔ علی ہمارے جھانسے میں نہیں آئے گا۔ دشمن کبھی پھنستے ہیں، کبھی جال توڑ کر نکل بھاگتے ہیں۔ اچھی بات ہے، ہمارے پاس زیادہ وقت بھی نہیں، اپنی تدبیر آزماؤ۔ شیتارہ آنکھیں بند کر کے تھوڑی دیر تک دل ہی دل میں ثانی کی آواز اور لہجے کی ریہرسل کرتی رہی، پھر خیال خوانی کی پرواز کرتے ہوئے علی کے دماغ میں پہنچ گئی۔ پہنچتے ہی پریشان سی ہو کر بولی، علی ہمیں اپنے کوڈ ورڈز بدلنا ہوں گے۔ ابھی کوئی میرے دماغ میں آ کر پاپا کے لہجے میں بول رہا تھا، حالانکہ اس نے صحیح کوڈ ورڈز ادا کیے تھے، لیکن مجھے کچھ شبہ سا ہوا تو میں نے کہا، پاپا آپ پہلے علی کے پاس جائیں، میں 5 منٹ بعد آؤں گی۔ مجھے بتاؤ علی، کیا ابھی کوئی تمہارے پاس آیا تھا؟ علی نے کہا، ابھی تک کوئی نہیں آیا ہے، یعنی تمہارا شبہ درست ہے۔ کسی دشمن کو ہمارے کوڈ ورڈز معلوم ہو گئے ہیں۔ آئندہ میں تمہارے پاس آؤں گی تو کہوں گی، ثانی فار علی اینڈ علی فار ثانی۔ بہت ہی محبت بھرے کوڈ ورڈز ہیں، میں یاد رکھوں گا۔ ایک اور سرپرائز دیتی ہوں، میں تم سے ملنے واشنگٹن سے نیو یارک آ گئی ہوں، ایئرپورٹ پر موجود رہوں گی۔ لیکن تم نے تو کہا تھا کہ وہاں تم سپر میڈم ہو، مجھ جیسے عام مسافر سے ملاقات کرو گی تو تمام انٹیلیجنس والے ہمارے پیچھے پڑ جائیں گے۔ میں اتنی نادان نہیں ہوں کہ تمہیں ایئرپورٹ پر دیکھتے ہی سب کے سامنے گلے لگ جاؤں، لیکن تمہیں دیکھتے ہی تمہارے ساتھ گزارے ہوئے رنگین و سنگین لمحات یاد آ جاتے ہیں۔ وہ ہنستی ہوئی بولی، ان یادوں کو زندگی دینے کے لیے میں نے اپنے ذاتی ذرائع سے ایک جگہ تمہاری رہائش کا انتظام کیا ہے۔ میں رات کے وقت وہاں چھپ کر آؤں گی۔ پھر تو اچھا وقت گزرے گا، لیکن مریم کا کیا بنے گا؟ وہ بیچاری اچھی عورت ہے، تمہاری رہائش گاہ کے کسی کمرے میں رہے گی۔ ایئرپورٹ پر 2 افراد تمہارا استقبال کریں گے، وہ دونوں سفید سوٹ اور سرخ نیک ٹائی میں ہوں گے۔
वो मुझे कैसे पहचानेंगे? तुम उनके सामने जाकर कहोगे, सफ़ेद सूट पर सुर्ख नेकटाई ऐसे लगती है जैसे कफन पर सुर्ख फूल रखा हो। बहुत अच्छे कोड वर्ड्स हैं। तुम्हें बहुत ज़्यादा मोहतात रहना चाहिए, इसलिए ये बता दूं कि वो दोनों तुम्हें जिस कार में लेकर जाएंगे उसका रंग भी सफ़ेद होगा और उसका नंबर है 40114। ठीक है, मैं नंबर याद रखूँगा। मैं जा रही हूँ। एयरपोर्ट पर छुपकर तुम्हें देखती रहूँगी, फिर रात के 8 बजे चुपचाप आऊँगी। अच्छा, जा रही हूँ, सो फार। वो दिमागी तौर पर हाजिर हो गई। खुश होकर बोली, भाई सरना, तवक्को से ज़्यादा कामयाबी हासिल हुई है। उसने एक ज़रा शुबा नहीं किया है, मुझे सानी समझता रहा है। चलो उठो, अपने 2 खास मातहतों को सफ़ेद सूट और सुर्ख नेकटाई पहनने के लिए कहो। गैरेज से सफ़ेद कार 40114 निकालो, बाकी बातें रास्ते में होंगी। रास्ते में सरना ने कहा, भाई की जान, अच्छी तरह सोच लो, कहीं हम खुशफहमी में धोखा ना खा रहे हों। वो पूरा चालबाजों का ख़ानदान है। फ़र्ज़ करो उसने मेरे फ्रॉड को समझ लिया है और समझ कर भी अनजान बन रहा है, तो एयरपोर्ट पर हमारा क्या बिगाड़ लेगा? हम दोनों उसका सामना नहीं करेंगे, दूर से तमाशा देखेंगे। हमारे 2 खास मातहत उसका इस्तकबाल करेंगे और उसे कार में ले जाएंगे। हाँ, एक बार वो हमारे अड्डे में पहुंच जाए तो फिर वहां से निकल नहीं पाएगा। वो बोली, और अगर वो फ्रॉड कर रहा है और हमें ट्रैप करना चाहता है तो यहाँ सोनिया सानी ने हमारे लिए जाल बिछा रखा होगा और वो भी मौजूद होगी। मैं दुआ कर रही हूँ कि वो मौजूद रहे और एक बार हमारी नज़रों में आ जाए तो फिर हम यूसुफ और अली और सारे दुश्मनों को छोड़कर उसे बेबस करेंगे। सरना ने कहा, बस इतना यकीन हो जाए कि नज़रों में आने वाली सानी है, मैं फ़ौरन ही गोली चलाकर उसे ज़ख्मी करूँगा। वो काबू में आएगी तो सुपर मैडम सिल्वाना का पोल खुल जाएगा, सुपर मास्टर उसका दुश्मन बन जाएगा। दूसरा फ़ायदा ये होगा कि उसे यरगमाल बनाएंगे तो अली जान की बाजी लगाने हमारी आग में आ कूदेगा। वो एयरपोर्ट पहुंच गए। तैयारा रनवे पर दौड़ता हुआ एक मखसूस मकाम पर रुक गया था। तैयारे से सीढ़ियां लगाई जा रही थीं, दरवाजे खुल रहे थे, मुसाफिर बाहर आ रहे थे। चंद मुसाफिरों के बाद मरियम और अली दरवाजे पर नजर आए और उसी वक्त एयरपोर्ट में जान की बाजी लगाने वाले मौजूद थे। लगेज हॉल के दरवाजे पर 2 सफ़ाक कातिल सफ़ेद सूट और सुर्ख नेकटाइज में अटेंशन थे। देखो तो यूं लगता था जैसे सफ़ेद कफन पर सुर्ख फूल रखे हुए हैं। हॉल के एक हिस्से में शितारा कई औरतों के दरमियान खड़ी हुई थी। उसकी तेज चुभती हुई नज़रें लगेज हॉल के दरवाजे पर लगी हुई थीं। टॉयलेट के एक बंद दरवाजे के पीछे पेपे सरना अपने रिवॉल्वर में साइलेंसर लगा रहा था। उस रिवॉल्वर की एक एक गोली पर सोनिया सानी का नाम मखसूस कर दिया गया था। अलर्ट, बाअदब, बामुलाहिजा, होशियार, रास्ता साफ रखो, सुपर मैडम सिल्वाना तशरीफ ला रही हैं। खट खट खट। ऊंची एड़ी के सैंडल चिकने फर्श की छाती पर धड़कते जा रहे थे। स्कर्ट और ब्लाउज में उस बाजीगर दोशीज़ा का बदन निगाहों में जज्ब हो रहा था। मिलिट्री सीक्रेट सर्विस के मुसल्लह जवानों के दरमियान शेरनी के अंदाज में चल रही थी। दूसरे फौजी जवान दौड़ते हुए आगे जाकर मुख्तलिफ जगह अटेंशन हो रहे थे। वो एक शान बेनियाजी से चलती हुई लगेज हॉल के दरवाजे की तरफ जा रही थी और उस दरवाजे से अली बाहर आ रहा था। अचानक एक लाइटर ने स्पार्किंग की। एक नन्हा सा शोला भड़का। उस शोले ने एक सिगरेट को सुलगाया। उसकी नन्ही सी रोशनी में यूसुफुल बुरहान उर्फ पाशा की गैर मामूली आंखें चमक रही थीं। वहाँ कौन नहीं था? वहाँ सब ही थे। ए मुकद्दर के खिलाड़ी, बता कौन किसे ट्रैप करेगा? क्योंकि अली और सोनिया सानी ने एक दूसरे को ना पहचानने की गलती की है। अली दरवाजे से निकलकर सफ़ेद कफन और सुर्ख फूल वाले के पास गया है और सानी दरवाजे से दाखिल होकर लगेज हॉल के अंदर चली गई है। ये नाशनासाई ज़रूर रंग लाएगी। पेपे सरना अपना रिवॉल्वर लोड कर चुका था। उसने रिवॉल्वर समेत दोनों हाथ अपने ओवरकोट की जेबों में डाले, फिर बाथरूम से चलता हुआ बाहर आया। बाहर आते ही जा बजा मुसल्लह फौजियों को देखकर परेशान हो गया। उसने सोनिया सानी को गोली मारना बहुत आसान समझा था। ये भूल गया था कि वो महज सोनिया सानी ही नहीं, उस मुल्क की सुपर मैडम भी है। शितारा एयरपोर्ट पर आने वाली चंद औरतों के दरमियान खड़ी हुई थी। वो दूर ही से अपने भाई सरना को देख रही थी। फिर उसने देखा कि सरना बाथरूम में वापस जा रहा है। उसने ख्यालख्वानी के ज़रिए पूछा, भाई सरना, कोई परेशानी है? हाँ, हम ये खेल जितना आसान समझ रहे थे इतना ही मुश्किल दिखाई दे रहा है। ये कमबख्त मलकाए आलम की तरह फौजियों की छाँव में आई है। हर सू मुसल्लह फौजी जवान दिखाई दे रहे हैं। कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ से छुपकर सानी पर गोली चलाई जा सके। मैं तुमसे यही कहने वाली थी। तुम्हारे पास उस रिवॉल्वर का लाइसेंस नहीं है।
यहाँ कोई वारदात होगी और चेकिंग शुरू होगी तो तुम पकड़े जाओगे, लिहाजा उसे बाथरूम में कहीं फेंक कर चले आओ। क्या नाकामी सी नाकामी थी। एक आतिशबाजी का शौक था, वो भी सानी ने पूरा नहीं होने दिया। वो झुंझला कर बोली, सानी यहाँ बहुत वसी ज़राए की मालिका है, यह आइंदा भी हमारे मंसूबों को नाकाम बनाती रहेगी। क्या ही अच्छा होता कि वो मेरे हाथों ज़ख्मी होकर यहाँ से जाती। वो मुसल्ला पहरेदारों के साथ आई है, उन्हीं के साथ वापस जाएगी। ये सोचो, क्या ये हमला उसकी रिहाइशगाह में किया जा सकता है? नहीं तारा, वहाँ भी सख्त पहरा लगा रहता है। उस रिहाइशगाह के अतराफ ऐसा इलेक्ट्रॉनिक निज़ाम कायम किया गया है जिसे कोई नाकाम बनाकर वहाँ कदम नहीं रख सकता। तो फिर मजबूरी है, फ़िलहाल अली पर तवज्जो दी जाए। यूसुफुल बुरहान बहुत दूर एक गोशे में खड़ा अपनी गैर मामूली कुव्वत समात से उन दोनों की बातें सुन रहा था और मुस्कुरा रहा था। उसे फ़िलहाल सानी और अली से इतनी दिलचस्पी नहीं थी। वो जल्द से जल्द शीतारा और सरना से पीछा छुड़ाना चाहता था, वहीं एयरपोर्ट पर उन दोनों का काम तमाम कर सकता था, लेकिन ये तस्दीक करना चाहता था कि वही असली शीतारा और सरना है या नहीं। सरना तेज़ी से चलता हुआ बाथरूम के एक टॉयलेट में आया, दरवाजे को अंदर से बंद किया, फिर जेब से रिवॉल्वर और फाजिल कारतूस निकालकर उन्हें फ्लश की टैंकी में डाल दिया। इस बात का दुख हो रहा था कि सानी ने हाथ नहीं चलाया था, जुबान नहीं चलाई थी और उसे हथियार फेंकने पर मजबूर कर दिया था। वो मात खाए हुए सिपाही की तरह बाथरूम से बाहर आ गया। उधर अली मरियम के साथ लगेज हॉल से बाहर आ गया था। उसने दूर तक नज़रें दौड़ाईं। मरियम ने पूछा, किसी शनासा को देख रहे हो? हाँ, आज न्यूयॉर्क में क़याम करेंगे। तुम्हारे पाशा के मुतल्लिक मालूम करूँगा कि वाकई वो जजीरा मार्क्यूसान में है या नहीं। मालूमात के मुताबिक आइंदा सफ़र करेंगे। उसकी नज़रें उन दो आदमियों पर ठहर गईं जो सफ़ेद सूट और सुर्ख नेकटाई में थे। वही उसके दुश्मन मेज़बान थे। वो आराम से चलता हुआ उनके सामने आया, फिर उन्हें सर से पांव तक देखते हुए मुस्कुरा कर कहा, ये सूट और ये नेकटाई ऐसी लग रही है जैसे सफ़ेद कफन पर सुर्ख फूल रखा हुआ हो। उन दोनों ने जवाबन मुस्कुराकर उससे मुसाफहा किया। एक ने कहा, राइट सर, हमारी जान पहचान के लिए यही कोड वर्ड्स मुकर्रर किए गए थे। हमें आपकी मेज़बानी का शर्फ हासिल हो रहा है, तशरीफ़ लाएं। वो आगे बढ़ना चाहते थे, फिर रुक गए। लगेज हॉल से दौड़ते हुए कदमों की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। लोग चौंक कर उधर देखने लगे। एक लहीम शहीम शख्स दौड़ता हुआ लगेज हॉल से बाहर आ रहा था। सानी उसका ताकुब कर रही थी। फिर वो एक लंबी छलांग लगाकर फर्श पर आई। उस नंगे फर्श पर फिसलती हुई तेज़ रफ्तारी से घूमते हुए एक स्वीपिंग किक मारी। भागने वाला उछलकर फर्श पर ऊंधे मुंह गिर पड़ा। औरतें, बच्चे, बूढ़े इधर उधर भागने लगे। अच्छी खासी भगदड़ शुरू हो गई। मुसल्ला फौजियों ने उस शख्स को नरगे में ले लिया। अपनी गनें उसकी तरफ सीधी कर लीं। सानी ने कहा, इसे कस्टम ऑफिसर के कमरे में ले चलो। वो हुक्म देकर उस कमरे की तरफ जाने लगी। चंद जवानों ने उस कैदी को जकड़ लिया था और उसे खींचते हुए ले जा रहे थे। अली ने मेज़बानों से पूछा, ये दोशीज़ा कौन है? बहुत ही स्मार्ट और बेहतरीन फाइटर है। सितारा एक सुर्ख नेकटाई वाले मेज़बान के दिमाग में थी। मेज़बान ने उसकी मर्ज़ी के मुताबिक कहा, जनाब, ये हमारी मैडम हैं, सुपर मैडम। ताज्जुब है आपने इन्हें नहीं पहचाना। मुझे अफसोस है, मैं तुम्हारी किसी मैडम को नहीं पहचानता हूँ। जब सामना होगा तो पहचान शुरू हो जाएगी। मरियम ने कहा, दोशीज़ा है ज़बरदस्त। अली ने पूछा, क्या ख्याल है अभी मुलाकात की जाए? दूसरे मेज़बान ने कहा, नो सर। मैडम ने कहा है कि पब्लिक प्लेस में आपसे मुलाकात नहीं करेंगी। जहां आपका क़याम होगा वहां वो खुद चली आएंगी। अली और मरियम उनके साथ एयरपोर्ट की इमारत से बाहर जाने लगे। दूसरी तरफ सानी कस्टम ऑफिसर के कमरे में आ गई थी। उसके पीछे वो कैदी लाया गया। उसने मुसल्ला जवानों से कहा, तुम सब बाहर जाओ। उन्होंने उस हुक्म की तामील की और बाहर चले गए। सानी ने दरवाजे को अंदर से बंद किया, फिर मुस्कुराकर कैदी को देखा। आगे बढ़कर उससे मुसाफहा करते हुए कहा, सॉरी मिस्टर जोसेफ, मैंने आपकी पिटाई कर दी। वो खुश दिली से बोला, कोई बात नहीं, फ़र्ज़ की अदायगी में ऐसा होता है। बाय द वे, मार्टिन कहाँ है? वो हमारा जासूस सुर्ख नेकटाई वालों के पीछे लगा हुआ है। वो सब एक ड्रामा प्ले कर रहे थे और उस कमरे के अंदर वो दोशीज़ा सुपर मैडम सिल्वाना यानी सानी नहीं थी, महज एक डमी थी। इसीलिए अली ने उसे नज़रअंदाज किया था। असल सानी अपने बेडरूम में बैठी आराम से तमाम हालात पर काबू पा रही थी। उसने डमी मैडम से कहा, मेरा रोल अच्छी तरह अदा कर रही हो, अब इसी कमरे में जोसेफ के साथ रहो, आधे घंटे से पहले ना निकलना। अली और मरियम मेज़बानों के साथ एयरपोर्ट की इमारत से बाहर आए। वहाँ सफ़ेद रंग की 0114 नंबर वाली गाड़ी खड़ी थी।
ایک میزبان نے ان کے لیے پچھلی سیٹ کا دروازہ کھولا۔ وہ اندر بیٹھ گئے۔ دونوں میزبان اگلی سیٹ پر آ گئے، لیکن کار سٹارٹ کرنے سے پہلے ہی چند مسلح فوجیوں نے انہیں گھیر لیا۔ ایک میزبان نے پوچھا، کیا بات ہے؟ فوجی افسر نے سوال کیا، تم نے کار یہاں کیوں کھڑی کی تھی؟ جناب، یہاں نو پارکنگ کا کوئی سائن نہیں ہے۔ بے شک یہاں نو پارکنگ لکھا ہوا نہیں ہے، لیکن ہماری سپر میڈم یہاں آ رہی تھیں، تمہاری گاڑی نے ڈسٹرب کیا ہے۔ اگر ہمیں معلوم ہوتا کہ سپر میڈم تشریف لا رہی ہیں تو آپ کو یہ گاڑی یہاں نظر نہ آتی۔ درست ہے، تم سے انجانے میں ایسا ہوا ہے، اس لیے ہم درگزر کرتے ہیں، تم جا سکتے ہو۔ اس افسر نے مصلحتاً انہیں باتوں میں الجھایا تھا۔ ان کی باتوں کے دوران جاسوس مارٹن نے اس کار کے نیچے ایک جاسوسی آلہ لگا دیا۔ اب وہ کار جہاں بھی جاتی وہ نشاندہی کرنے والا آلہ ثانی کے ایک آلے کو بتاتا رہتا کہ وہ گاڑی کہاں پہنچ رہی ہے۔ یوسف البرہان عرف پاشا اپنی گاڑی میں آ کر بیٹھ گیا تھا۔ وہ اپنی قوت سماعت کے ذریعے شیتارا اور سرنا کی آوازیں سننا چاہتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ان بہن بھائیوں کی آوازیں سنائی دیں۔ وہ ایک کار میں آ کر بیٹھ گئے۔ سرنا کہہ رہا تھا، علی کے پیچھے جانا ضروری نہیں ہے، ہم اطمینان سے چلیں گے، وہ گاڑی ہمارے خفیہ اڈے میں ضرور پہنچے گی۔ یوسف پاشا ان کی آوازیں سن سکتا تھا، لیکن یہ دیکھ نہیں سکتا تھا کہ وہ کس رنگ کی اور کس نمبر کی گاڑی میں شیتارا کے آدمیوں کے ساتھ جا رہا ہے۔ شاہراہوں پر ہزاروں گاڑیاں رینگ رہی تھیں۔ وہ اندازاً ایک گاڑی کے پیچھے چل پڑا تھا اور ان کی گفتگو سنتا رہا تھا۔ شیتارا کہہ رہی تھی، ہم نے ہی اسے آنے کو کہا تھا، مجھے کیا معلوم تھا کہ وہ عام شہری کی حیثیت سے نہیں بلکہ میڈم بن کر آئے گی اور ہماری آدھی پلاننگ چوپٹ کر دے گی۔ سرنا نے کہا، یہ بھی ہمارے حق میں اچھا ہوا کہ وہ کسی بہت بڑے مجرم کے معاملے میں مصروف ہو گئی ہے۔ اس مصروفیت کے باعث وہ علی سے رابطہ نہیں کر رہی ہے۔ ہو سکتا ہے اس نے رابطہ کیا ہو، اگر کرتی تو اسے معلوم ہو جاتا کہ علی کو ٹریپ کیا جا رہا ہے اور وہ ثانی سے ملنے کے دھوکے میں کہیں جا کر پھنسنے والا ہے، اور حقیقت معلوم ہوگی تو ہمارے خفیہ اڈے کی طرف ضرور آئے گی۔ بس ایک بار آ جائے، اس بار اس چلاک لومڑی کو کہیں جانے نہیں دوں گا۔ شیتارا نے کچھ سوچ کر کہا، میں نے علی کے دماغ میں جا کر جھانسا دیا تھا کہ میں ثانی ہوں اور دشمنوں کو ہمارے کوڈ ورڈز معلوم ہو چکے ہیں، پھر میں نے علی کی مرضی سے کوڈ ورڈز بدل دیے تھے۔ مجھے یہ معلوم کرنا چاہیے کہ ثانی سابقہ کوڈ ورڈز کے ذریعے علی سے رابطہ کرتی ہے یا نہیں۔ شیتارا نے خیال خوانی کی پرواز کی، پھر علی کے پاس آ کر ثانی کے لہجے میں کوڈ ورڈز ادا کیے۔ علی نے کہا، تم میری ثانی نہیں ہو، تم نے کسی طرح ہمارے کوڈ ورڈز معلوم کر لیے ہیں، لیکن ہمارے نئے کوڈ ورڈز کبھی معلوم نہیں کر سکو گی، جاؤ یہاں سے۔ اس نے سانس روک لی۔ شیتارا نے دماغی طور پر حاضر ہو کر سرنا سے کہا، ہماری چال کامیاب رہی ہے، وہ ثانی کے سابقہ کوڈ ورڈز کو تسلیم نہیں کر رہا، اس نے مجھے دشمن سمجھ کر دماغ سے نکال دیا ہے، اب میں اپنے طے شدہ کوڈ ورڈز کے مطابق اس سے رابطہ کر رہی ہوں۔ وہ تھوڑی دیر خاموش بیٹھی سوچتی رہی، پھر علی کے پاس پہنچ کر بولی، ثانی فار علی اینڈ علی فار ثانی۔ علی نے کہا، ہاں یہ ہمارے نئے کوڈ ورڈز ہیں، تم میری ثانی ہو۔ تھوڑی دیر پہلے کوئی دشمن خیال خوانی کرنے والی آئی تھی، ہم نے جو تبدیلی کی ہے اس کا علم اسے نہیں تھا، میں نے اسے بھگا دیا۔ بروقت تبدیلی کے باعث تم دھوکہ کھانے سے بچ گئے ہو، میں تمہارے پاس آ رہا ہوں، کیا تم وہاں میری منتظر ہو؟ تم میرے پاس نہیں آ رہے ہو، میری ایک خفیہ رہائش گاہ کی طرف جا رہے ہو، میں رات 8 بجے تک تمہارے پاس آنے کی پوری کوشش کروں گی۔ ہائے، 8 بجے تک تو میرے انتظار کے 12 بج جائیں گے، اتنا وقت میں کیسے گزاروں گا؟ وہ ہنس کر بولی، انتظار کے بغیر وصال یار نہیں ہوتا، جہاں میں جا رہا ہوں وہاں تمہارا کوئی لباس ضرور ہوگا۔ ہاں ضرور ہے، میرے لباس کا کیا کرو گے؟ تمہارے آنے تک اس لباس سے لپٹ کر دل کی دھڑکنوں کو آرام پہنچاتا رہوں گا۔ شیتارا ہنستی ہوئی دماغی طور پر حاضر ہو گئی، پھر سنجیدہ ہو کر ناگواری سے بولی، فرہاد کا یہ بیٹا تو بالکل ہی زن مرید لگتا ہے، اسے تو کوئی بھی حسینہ الو بنا سکتی ہے۔ سرنا نے کہا، میں نے تو سنا ہے علی تیمور بہت ہی سنجیدہ اور محتاط رہنے والا جوان ہے، پارس کے بالکل برعکس ہے، عورتوں سے دور بھاگتا ہے، دور کے ڈھول ایسے ہی سہانے سنائی دیتے ہیں، نزدیک جاؤ تو ان کی آواز بے ڈھنگی لگتی ہے۔ وہ بولا، یہ پل کراس کرنے کے بعد شاید دائیں ہاتھ مڑنا ہے؟ ہاں دائیں ہاتھ، واشنگٹن اسٹریٹ تک چلو، پھر اسٹریٹ 43 میں موڑ لو۔ بس یاد آ گیا، اسٹریٹ 43 کا بڑا بنگلہ ہمارا ہے۔ وہ بہن بھائی ساری دنیا کے ملکوں اور بڑے بڑے شہروں میں جائیداد اور کوٹھیاں وغیرہ خریدتے رہتے تھے اور ہر ایک کا پتہ اور تفصیلات یاد نہیں رکھ سکتے تھے۔ انہوں نے یادداشت کے لیے قابل اعتماد شخص کو اپنی جائیداد کا نگران بنا دیا تھا۔
जिस कोठी या खुफिया अड्डे वगैरह के मुतल्लिक कुछ भूल जाते थे उस निगरान से राब्ता करके मालूम कर लिया करते थे। फौरी तौर पर मालूमात हासिल करने के लिए शितारा उसके दिमाग में पहुंच जाती थी, फिर वापस आकर सरना को तफसीलात बता देती थी। उनके भूलने का फ़ायदा यूसुफ पाशा को पहुंच रहा था। वो इत्मीनान से कार ड्राइव करता हुआ उनकी बातें सुन रहा था और मालूम कर रहा था कि इस वक्त वो दोनों किस खुफिया अड्डे की तरफ जा रहे हैं। उस अड्डे का पूरा पता उसे मालूम हो चुका था। अली की गाड़ी उस रिहाइशगाह के अहाते में पहुंच गई। वो रिहाइशगाह क्या थी? एक वसी और अरीज महल था। इतना बड़ा महल कि वो महल के अंदर चली आई थी। महल के स्लाइडिंग दरवाजे बंद हो गए थे। फिर कार एक जगह रुक गई थी। वो सुर्ख नेकटाई वाले अगली सीटों से उतरकर कार से बाहर गए, फिर दरवाजे को बंद कर दिया। अली ने पिछली सीट से निकलना चाहा, पता चला तमाम दरवाजे लॉक हो गए हैं। उसने एक उंगली से खिड़की के शीशे पर दस्तक दी। उन्हें मुखातिब करना चाहा लेकिन वो दूर जा चुके थे। मरियम ने परेशान होकर पूछा, क्या उन्होंने यहाँ हमें बंद कर रखा है? हाँ, अब अपनी असलियत दिखा रहे हैं। हमसे दुश्मनी क्या है? ये शायद तुम्हें यरगमाल बनाकर तुम्हारे यूसुफ पाशा को पकड़ना चाहते हैं। ओ खुदाया, मेरी वजह से तुम फंस गए हो। ऐसी बात नहीं है, ये मेरे भी दुश्मन हैं। उनकी बातों के दौरान वो कार आहिस्ता आहिस्ता फर्श में धंस रही थी। ये समझने में देर नहीं लगी कि वो एक अंडरग्राउंड लिफ्ट है, उन्हें किसी तय खाने में ले जा रही है। ये जानबूझकर फंसने वाली बात थी। अली ने यह नहीं देखा था कि इस लिफ्ट को कहाँ से और किस तरह ऑपरेट किया जाता है। चूंकि वो नहीं जान पाया था, इसलिए सानी भी उसके ज़रिए कुछ मालूम नहीं कर सकती थी। वो लिफ्ट एक जगह रुक गई। कार के सामने एक आहनी स्लाइडिंग दरवाज़ा दो हिस्सों में तकसीम होकर खुलने लगा। खुलने वाले दरवाजे के ऐन वस्त में एक हसीना खड़ी हुई थी। वो बड़े नाजो अंदाज से चलती हुई पिछले दरवाजे के पास आई, फिर उसे खोलते हुए बोली, खुशामदीद अली तैमूर। वो मरियम के साथ कार से बाहर आया, फिर बोला, यूं इस्तकबाल करने का पुरस्कार अंदाज मुझे पसंद आ रहा है। वो मुस्कुरा कर बोली, क्या मैं पसंद नहीं आ रही हूँ? ये नहीं पूछोगे कि मैं कौन हूँ? पूछने की क्या ज़रूरत है, खुद ही बता दोगी। तुम कोई राज होती तो छुपी रहती, यूं जाहिर ना होती। तुम्हें यह सुनकर दुख होगा कि यहाँ धोखा खा कर आए हो। मुझे जानबूझकर धोखा खाने में मज़ा आता है। फिर तो वाकई जीदार हो, मौत को दावत देते हो। आओ चलें। वो लिफ्ट से बाहर एक वसी और अरीज हॉल में आए। वो हॉल एक शाही ऐश कदे की तरह सजा हुआ था। एक खूबसूरत सा फवारा था। फवारे के अतराफ हौज में हसीन औरतें एक दूसरे पर पानी के छींटे उड़ा रही थीं और खिलखिलाकर हंस रही थीं। कुछ साज बजा रही थीं और कुछ नाजुक अंदाम हसीनाएं रक्स कर रही थीं। मरियम ने चारों तरफ देखते हुए कहा, तौबा, ये हम कहाँ आ गए हैं? अली ने कहा, ये थर्ड क्लास नौटंकी करने वालों का तमाशा है। मेज़बान हसीना ने कहा, यह तमाशा नहीं, कामयाबी का जश्न है। मेरा नाम शितारा है। आज मैंने बैक वक्त 2 शिकार किए हैं। फरहाद और यूसुफुल बुरहान की बड़ी कमज़ोरियाँ मेरी मुट्ठी में हैं। मरियम ने कहा, नाचती हुई मोरनी भूल जाती है कि उसके पाँव कितने भद्दे हैं। तू भी कामयाबी की खुशी में भूल रही है कि मेरा पाशा इस वक्त हमारी गुफ्तगू सुन रहा होगा। उसे मालूम हो रहा होगा कि मैं कहाँ हूँ और किस हाल में हूँ। तेरी शामत आ गई है। वो हंसने लगी, फिर बोली, यही तो मेरी प्लानिंग है कि वो हमारी गुफ्तगू सुने और मालूम करे कि मैं तुम्हें किन रास्तों से गुजार कर यहाँ लाई हूँ। वो तुझे बचाने के लिए यहाँ मरने आएगा। अली की जाने हयात भी यही हमाकत करने वाली है। वो ऐश कदे की सैर करने के अंदाज में चल रहे थे, फिर एक जगह रुक गए। निगाहों के सामने एक दरवाज़ा खुल रहा है। वहाँ एक और शितारा नज़र आ रही थी। मरियम ने हैरानी से दोनों को देखा। वो दोनों कद और जिसामत में और चेहरे के नाक नक्शे में बिल्कुल एक जैसी थीं, बिल्कुल जुड़वां बहने लगती थीं। दूसरी शितारा ने अली के करीब आकर पूछा, एक बात समझ में नहीं आई, तुमने एयरपोर्ट पर सोनिया सानी को क्यों नहीं पहचाना? अली ने कहा, वहाँ सानी नहीं थी, फिर कैसे पहचानता? हमारे सुर्ख नेकटाई वाले ने तुम्हें बताया था कि वो सुपर मैडम सिल्वाना है। हाँ, ये बताया था, लेकिन मुझे यकीन नहीं था। मैं अपनी जाने हयात को किसी की ज़ुबान से नहीं, अपनी आंखों से पहचानता हूँ। लेकिन एयरपोर्ट पर सभी जान रहे थे कि वो सुपर मैडम सिल्वाना है, और तुम ये जानते हो कि सिल्वाना ही सानी है। कोई ज़रूरी नहीं है कि जो सिल्वाना हो वो सानी भी हो। तुम ये कहना चाहते हो कि वो असली सुपर मैडम नहीं थी? तुम ज़रा देर से समझती हो। तुम्हें कैसे पता चला कि वो सुपर मैडम की डमी है? मेरे और सानी के दरमियान कई तरह के गूंगे इशारों की ज़ुबान जारी रहती है। उसे मेरे दिमाग में आने और ज़ुबान हिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती।
उस डमी ने लगेज हॉल में सानी का बताया हुआ एक मखसूस इशारा किया था और मैं समझ गया कि मुझे उससे अनजान बनकर रहना चाहिए। उस ऐश गदे के नीचे भी कोई तहखाना था। उस तहखाने की सीढ़ियाँ चढ़ती हुई एक और सितारा नमूदार हुई, फिर मुस्कुरा कर बोली, मैं हूँ सितारा 3। मैं तुम्हारी बातें सुन रही थी। सानी की चालाकी मालूम हो गई। वो एयरपोर्ट पर अपनी डमी भेजकर खुद छुपी हुई है और हमारा ताकुब करती हुई यहाँ पहुँचने वाली है, लेकिन वो भटकती रहेगी, यहाँ नहीं पहुँच सकेगी। ये तुम्हारा ख्याल है? मेरा ख्याल है कि वो पहुँच गई है और इस खुफिया अड्डे का मुहासरा कर रही है। ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि जगह जगह हमारे मातहत निगरानी कर रहे हैं। किसी ने तुम्हारी कार का ताकुब नहीं किया, फिर उसे इस अड्डे का इल्म कैसे हो सकता है? दूसरी सितारा ने पूछा, क्या वो तुम्हारे दिमाग में आकर मालूम करती रही है? मैं कह चुका हूँ, जब से तुम दिमाग में आ रही हो वो आ रही है। वैसे वो अगर दिमाग में आकर तुम्हारे ज़रिए यहाँ के रास्तों को देखती रही है तो फिर धोखा खा गई है, क्योंकि हमारे मातहतों ने आर्जी तौर पर तमाम रास्तों और गलियों के नामों निशान बदल डाले हैं। असल नामों पर फर्जी नामों की प्लेटें चढ़ा दी हैं। एक और सितारा ने हंसकर कहा, सानी तुम्हारे ज़रिए गुजरने वाले नामों के रास्ते और गलियां तलाश करती होगी। अली ने जवाब दिया, जहाँ तक तुम्हारी अकल ने समझाया तुम अपने दाव पेच इस्तेमाल करती रही। हमारी अकल ने इस कार के नीचे एक डिटेक्टिव आला लगा दिया था जो मुझे यहाँ तक लाई है। एक और सितारा तहखाने की सीढ़ियों से ऊपर आई और बोली, सानी यहाँ आकर किस सितारा को गिरफ्तार करेगी? मुझे, इसे या इसे? वो किसे मारेगी और किसे पकड़ेगी? वो सीढ़ी के पास आया, नीचे तहखाने में जाना चाहता था तो सिताराओं ने सामने आकर रास्ता रोक लिया। उनमें से एक बोली, उधर जाने की इजाज़त नहीं है। दूसरी ने कहा, तुम्हें कैदी बनकर रहने के लिए यही हॉल काफ़ी है। वो बोला, तुम नहीं चाहती कि मैं तहखाने में जाऊं और तुम्हारी छुपाई हुई गैर कानूनी चीज़ें देखूं? बाय द वे, मेरे देखने और ना देखने से क्या फ़र्क पड़ता है? सानी यहाँ आकर कानूनी तौर पर छापा मारेगी और गैर कानूनी चीज़ों के ज़खायर दरियाफ्त कर लेगी। एक और सितारा ने कहा, और हम सारी सिताराओं को गिरफ्तार करके ले जाएगी, लेकिन असली सितारा की परछाई तक भी नहीं पहुंच पाएगी। एक समत से पेपे सरना की आवाज़ सुनाई दी। अली ने घूम कर देखा। वो कह रहा था, मेरी बहन, सिर्फ अपने फ़ायदे पर ही नहीं, नुकसान पर भी नज़र रखा करो। मैंने अभी मालूम किया है, सुपर मैडम ने हमारे इस अड्डे को चारों तरफ से घेर लिया है। हमारा करोड़ों डॉलर्स का माल पकड़ा जाएगा और ये बेहतरीन खुफिया अड्डा हमारे हाथ से निकल जाएगा। एक और पेपे सरना ने आकर कहा, दुनिया में हर जानदार का जोड़ा होता है। हमारी अंडरग्राउंड दुनिया में हम दोनों का जोड़ा पैदा होता रहता है। हर पेपे सरना के साथ एक सितारा पैदा होती है। बॉस का हुक्म है कि फ़ौरन ये अड्डा खाली कर दो। वो तमाम सिताराएं और दूसरी हसीनाएं जाने लगीं। पेपे सरना ने एक दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए कहा, मिस्टर अली, हमारे साथ आओ। वो किसी सरना का हुक्म ना मानता, वहीं हंगामा शुरू कर देता, लेकिन वो तहखाने से बाहर जाने का रास्ता देखना चाहता था और ये मालूम करना चाहता था कि वो अपने बचाव के लिए क्या कर रहे हैं। वो उनके साथ चलता हुआ एक दरवाजे तक आया। दूसरे सरना ने उस दरवाजे को खोला। दूसरी तरफ एक सुरंग दूर नजर आ रही थी। सुरंग के फर्श पर रेलवे लाइन बिछी हुई थी। एक छोटी सी रेल कार खड़ी हुई थी। उनमें से एक ने रिवॉल्वर निकालकर अली से कहा, चलो बैठो। अली ने कहा, ये खिलौना दिखाकर धमकी दोगे तो मुझे यहाँ से 1 इंच नहीं हिला सकोगे। क्या तुम्हें ज़िंदगी अजीज़ नहीं है? मुझसे ज़्यादा तुम लोगों को मेरी ज़िंदगी अजीज़ है। अगर मुझे मार दोगे तो मेरे पापा को ब्लैकमेल कैसे करोगे? दूसरे सरना ने पहले से कहा, रिवॉल्वर जेब में रख लो, वक्त ज़ाया ना करो, हमें यहाँ से फ़ौरन निकलना है। उसने हथियार जेब में रख लिया। उन्हें अंदेशा था कि सानी फौजियों के साथ रास्ता ढूंढकर वहाँ तक चली आएगी। वो सब रेल कार में आकर बैठ गए। वो कार वहाँ से जाने लगी। ऐसा तहखाना और ऐसी लंबी लंबी सुरंग किसी बहुत ही मालदार और बैनुल-अक़वामी सतह के मुजरिम ने कभी बनवाई होगी। उस मुजरिम को सितारा ने टेलीपैथी के ज़रिए ट्रैप किया होगा और आज वो खुफिया अड्डा इन दोनों के हाथों से निकल रहा था। वो रेल कार सुस्त रफ्तारी से जा रही थी। उस तहखाने और अड्डे से दूर किसी ऐसी जगह वो सब अंडरग्राउंड से निकलकर सानी के हमले से महफूज रह सकते थे। अली ने कहा, तुम लोगों ने मुझे होश में रखकर अपने लिए मुसीबत मोल ली है। मुझे जहाँ ले जाओगे मेरे तमाम टेलीपैथी जानने वालों को उस जगह का इल्म होता रहेगा। एक ने कहा, हम तुम्हें बेहोश करके ले जाएंगे, ये हसरत ही रह जाएगी। सरना ने कहा, तुम्हें मेरी जिस्मानी कुव्वत का अंदाज़ा नहीं है।
میں نے اصلی پیپے سرنا کی غیر معمولی جسمانی قوت کے متعلق بہت کچھ سنا ہے۔ تم سب نقلی ہو، مجھے نقلی قوتوں سے مروب نہ کرو۔ وہ سب خاموش رہے۔ وہ ریل کار کافی فاصلہ طے کرنے کے بعد ایک جگہ رک گئی۔ انہوں نے علی کو کار سے اترنے کے لیے کہا اور دروازہ کھول دیا۔ علی نے دروازہ کھولنے والے کو اچانک ہی ایک لات ماری۔ وہ لات کھا کر ریل کار سے باہر سرنگ میں گر گیا۔ ڈاکٹر محمد انیب سلیمی کے ساتھ مزید اقساط سننے کے لیے ہمارے چینل کا سبسکرائبر بنیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی ویڈیو کے متعلق نوٹیفیکیشنز ملتی رہیں۔ ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ISI اور پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ ہم پھر ملیں گے انشاءاللہ ایک نئی قسط کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔